As a project consultant in TERI, I am delighted to welcome you all to the 22nd edition of the annual flagship event of the Energy and Resources Institute, the World Sustainable Development Summit. This year, the summit deliberation focus is on the umbrella theme mainstreaming sustainable development and climate resilience for collective action. The world has made many strides in bringing at the forefront the issues related to the environment, biodiversity loss, climate change, and has achieved many milestones in integrating sustainable development into the public, private, and societal discourses. One such effort is the Green School, an initiative undertaken by Tata Steel Foundation and TERI in 2017, which aims to create awareness about environment conservation in the school network through curriculum linkages, action projects, and capacity building activities on four broad environmental themes: energy, water, forest and biodiversity, and waste. The Green School made its mark with representation at several international events like 9th ESD International Forum held in 2017, COP24 and COP25. The project learning were displayed at WSDS in 2019, 2020 and 2022. The project was also recommended by Indian National Commission for Cooperation with UNESCO for the Venhui Award for Education Innovation in 2018. The Green School has also been recognized as a replicable model for environment education in local communities and was shared by Think 20 as a policy recommendation at the G20 summit in November 2020. Now let's begin with today's thematic track, Younger Collectives for Greener Future. The thematic track consists of three panel discussion and a dialogue focusing on a greener tomorrow. We look forward to your enthusiastic participation throughout the event. With this, I would like to invite Mr. Saurav Rai, Chief Executive Officer, Tata Steel Foundation, to deliver the opening remarks. Good afternoon, everyone. I think just to begin with, you're probably in one of the most important conference tracks for the day at the summit. And the WSDS anyway is a sort of a national event and discusses, lends depth to a national discourse, which is phenomenal. And आप सब एक बहुत important और मेरे ख्याल से underappreciated segment में है, so which is phenomenal. Welcome everyone. The Green School project has been a point of pride. एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं. जहाँ तक शिक्षा का मामला है, एजुकेशन का मामला है, ये हमारा एक फोकस एरिया रहा है. एंड आवर बिलीफ, हमारा विश्वास ये रहा है कि इट्स नॉट जस्ट इनफ टू क्रिएट सॉल्यूशंस, वन हैज टू एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम. बहुत आइडियाज आते हैं, बहुत चीजें करने को, बहुत चीजें करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट सिर्फ मॉडल्स या टूल्स ना तैयार करें, but we actually use what are the correct models and tools and create models which take them out to students. So I think the Green School program has developed fantastically well. आज का जो track है, younger collectives for greener futures. हम लोग देश के जिस अंचल में काम करते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं कि इंडिया is going to be the youngest country going forward. हमारे young देश का जो सबसे यंग भाग है वो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत है. तो पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में हम लोग काम करते हैं, एंड वी हैव द प्लेजर एंड द प्रिविलेज टू वर्क विद फैंटास्टिक यंग माइंड्स. उनमें से कुछ आपके साथ उस रूम में हैं आज. यू विल बी एबल टू लिसन टू देम, लिसन टू देयर पर्सपेक्टिव्स. So I would only urge all of you to pay a lot of attention to what these young minds have to say today. Okay, because it is unbelievable how much we learn from their questions. हमारे some of our best held beliefs are questioned every day in our interactions, and we are stunned by what they are able to achieve. अभी ये ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक टीचिंग मेथोडोलॉजी प्रोग्राम के साथ शुरू हुआ था. नाउ दिस टाइम इस फेज में I think the children and a lot of the schools are taking up fantastic responsibilities. आप लोग environmental clubs और committees के बारे में सुनेंगे, जो बाहर जाके ना केवल अपने स्कूल में, अपनी जिंदगी में, पर दूसरों की जिंदगी में भी अभी they are making a very positive difference. And I will not stand between you and the children for far too long.
The program is structured very well today. You may have had a chance to see the agenda. I think there's discussions around ideas. There are discussions around. There is a lovely conversation we will hear from the children, and also we'll have a few other colleagues join us who are excellent thinkers in the domain. So with that, on behalf of the Tata Steel Foundation and the Terry team, welcome to this track and my best wishes for the discussions. And अगर यहाँ से कुछ ideas निकल के आते हैं from the teachers, from the children, from all of you, I can assure you from the Tata Steel Foundation that we'll be the keenest to take them forward and see where that goes. So in the spirit of learning, thank you very much and looking forward to what we have in store for today. Thank you. Thanks. Thank you so much, sir. You have always been a great mentor and support to us, and we look forward to your guidance in the future. Moving ahead, we will proceed towards our first panel discussion on joining hands for Younger Collective. May I invite Dr. Neha, Senior Fellow Terry, to moderate this discussion. Hello everyone. So this panel is about joining hands for Younger Collective. इस पैनल के अंदर हमारे जो जितने भी यंगर ग्रीन स्किपर्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं. एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी एक कमेटी फॉर्मुलेट हुई है हमारे सभी 26 एक्सपीरियंस स्कूल्स में. सो आज हमने उनमें से कुछ बच्चों को बुलाया है. कुछ ऐसे एक्सपीरियंस स्कूल्स हैं क्योंकि दिस इज़ द टाइम जब एग्ज़ाम्स होते हैं और वो बच्चे इस टाइम अपने फाइनल टर्म की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए हैं. बट वी आर वेरी हैप्पी टू हैव विद अस मिस अंजलि पात्रा जो कि ग्रीन स्किपर हैं रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स स्कूल जोड़ा से. उसके साथ हमारे साथ हैं श्रद्धा दास जो कि ग्रीन स्किपर हैं टाटा मिडल स्कूल टिस्को नामुंडी से. और ऋतुराज मोहंता ग्रीन स्किपर हैं श्रम शक्ति हाई स्कूल सुकिंदा. वेलकम यू ऑल एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू एज माई पैनलिस्ट. इस पैनल में हमारे ग्रीन स्किपर्स अपने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कमेटी के तहत उन्होंने जितने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने स्कूल को ग्रीन करने के लिए, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, कैसे उन्होंने उसे प्लान करा है और उनकी पूरी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी क्या प्लान करती है, कैसे उसे आगे ले जाना चाहती है. चलिए जानते हैं हम उन्हीं के द्वारा. सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी अंजलि पात्रा को जो कि रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स स्कूल से हैं. अंजलि आप बताएं. नमस्कार, जोहार. किसी ने सच ही कहा है कोई भी काम कोई भी जगह पे लोकल और वोकल होना ज़रूरी है. मैं इसी बात को ध्यान दे के अपना परिचय दे रही हूँ. मैं ग्रीन स्कीपर अंजलि पात्र उड़ीसा की केवंझर डिस्ट्रिक्ट की जोड़ा शहर से आई हूँ. मैं जोड़ा गर्ल्स आरबीसी में रहती हूँ. मैं 2017 से द ग्रीन स्कूल से जुड़ा हूँ और अभी हमारा 1 साल हुआ है ईएमसी कमेटी का. हम लोग इस कमेटी में 12 जन मेंबर्स हैं और हम लोग एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि पानी बचाना, वृक्षारोपण करना, कंपोस्ट बनाना, जो वेस्ट मटेरियल्स है उसे किसी अच्छा चीज़ बनाना. हम लोग आर्मी में बहुत सारे काम करते हैं और जैसे कि गार्डनिंग काम. हमारा बहुत सारे गार्डन हैं, फ्लावर्स गार्डन, वेजिटेबल गार्डन और मेडिसिनल गार्डन. और जो बाहर का हमारा एक ठो टैब है तो हम उसमें हाथ धोते हैं तो जितना पानी वेस्ट होता है उसका एक ठो नाली बना दिए हैं और एक छोटा सा पंड जो पानी उधर जाता है और उसको इकट्ठा होता है और उसी पानी को हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं. और जो वेस्ट पेपर है न्यूज़पेपर तो उसको हम भिगो के ग्राइंडिंग करके हमारा एक ठो छंच है उसे हम पेपर बनाते हैं और उसे कोई भी मतलब शेप देते हैं और उसको कलर वलर करके सजा लेते हैं. और हम लोग एक तो स्कूल को भी लिए हैं जोड़ा वेस्ट हिंदी एमई स्कूल. वो लोग भी हमारा साथ जुड़े हैं और हम लोग जो भी क्रिएटिविटीज़ करते हैं उनको साथ लेके करते हैं, देन करवाते हैं. और लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हम लोग रैली भी करते हैं और नदी साफ़ करने के लिए भी जाते हैं कभी कभी. और जितने भी हम एक्टिविटीज़ किए हैं वो सब सिर्फ वेस्ट मटेरियल से ही हुए हैं. और जो वेस्ट मटेरियल से हुए हैं तो हम उनको इकट्ठा करते हैं, जैसे कि यूज एंड थ्रो पेन, उसी पेन से हम पुतला बनाते हैं. और गार्डनिंग काम में हमारा हैंगिंग गार्डन है, जो नारियल का जो डिब्बा होता है ना उसी से हम गार्डन बनाए हैं. और
हमारा ग्रीन स्कूल, टेरी, हमारा ईएमसी कमेटी, हम चाहते हैं कि चारों तरफ हरियाली हो, ग्रीन हो। तो अगर आप लोगों को मतलब आप लोग हमारा अगर सहायक बने तो शायद नहीं, ज़रूर हम आगे अपना फ्यूचर बेहतर बना सकें। और एक बाल्टी पानी को हम सिर्फ देखते हैं और एक तालाब का पानी को हम गौर से देखते हैं, और अगर एक लहर आ जाए तो हमारा फेस एक्सप्रेशन भी कुछ अलग होती है। तो हम एक दो चाहें तो नहीं हो सकता है, अगर आप लोग सभी चाहें तो ये ज़रूर हो सकता है। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने कि अगर सब चाहें तो क्या नहीं हो सकता, और बट एक बड़े पहलू की शुरुआत छोटे से होती है, जो कि आपने बहुत अच्छे से किया है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स स्कूल एक ऐसी मुहिम है जो टाटा स्टील फाउंडेशन ने स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन लर्नर्स पढ़ते हैं। ये आप अपने साथ लोकल नॉलेज को भी लाते हैं, जो कि वहाँ के ट्राइबल एरिया से आती हैं, जो कि बताती हैं कि वो हम पर्यावरण के सुरक्षित भी रख सकते हैं और उसको सतत विकास के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। और जो कि आप अपने छोटे छोटे जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं या छोटी छोटी आदतों में बदलाव ला रहे हैं, उसके तहत आप कैसे ये चेंजेस ला रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। चलिए अब आपके साथ चलते हैं हम श्रद्धा के पास, जो कि ग्रीन स्कीपर हैं नामुंडी से, और जानते हैं कि श्रद्धा के ईएमसी क्या कर रहे हैं। श्रद्धा बताएं। मैं श्रद्धा दास टाटा स्टील नामुंडी, टाटा स्टील एमई स्कूल नामुंडी की ओर से नमस्कार करती हूँ, और मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ईएमसी का गठन हमारा स्कूल में ईएमसी का गठन हुआ है, जिसका नाम अंतोगत्वा है। हमारा स्कूल 2018 से ग्रीन स्कूल में जुड़ा हुआ है। यह हमारे ग्रीन मेंबर्स है। ईएमसी का गठन होने के बाद ईएमसी के बच्चों ने ये सारी काफ़ी एक्टिविटीज़ किए हैं। यह हमारे ग्रीन सदस्य है। यह हमारा अर्ली स्कूल जाने से पहले की तैयारी है। हमारा मिशन पूरा करने के लिए हम लोगों ने अर्ली स्कूल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का हाथ थामा है। ईएमसी के छात्राओं ने बाकी के स्कूल के बच्चों को बताया कि गीला कचरा, सूखा कचरा किस कलर के डस्टबिन में डालना है, बता रहे हैं। जैसे कि गीला कचरा ग्रीन कलर के डस्टबिन में डालना है और सूखा कचरा ब्लू कलर के डस्टबिन में डालना है, ये बता रहे हैं। हमारा ईएमसी के बच्चों ने काफ़ी सारी पुरानी एक्टिविटीज़ किए हैं, जैसे कि पुराने कपड़ों से थैला और रद्दी कागज से राखी बनाया है। कोकोनट सेल्स, हम लोगों ने नारियल के छिलके से कोकोनट सेल्स और डेकोरेटिव आइटम बनाया है। पुराने कपड़े और रद्दी कागज से हम लोगों ने डेकोरेटिव आइटम बनाया है। हम लोगों ने अर्ली स्कूल जाकर वहाँ पे किचन कंपोस्ट और रद्दी कागज से पेपर बॉल और हैंडमेड पेपर बनाना सिखाया है। सूखे पत्तों को ना जलाकर उसे एक जगह जमा करके हम लोगों ने इन पत्तों से कंपोस्ट पिट बनाया है। ईएमसी के बच्चों ने प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंककर उसे एक जगह जमा करके उसे पिघलाकर प्लास्टिक ब्रिक्स बनाया है, जिससे हम लोग प्लास्टिक ब्रिक्स को फुटपाथ के उपयोग में ला सकते हैं। चौक के छोटे छोटे टुकड़े करके अनयूज्ड प्लास्टिक के बोतल से हम लोगों ने प्लास्टिक बोतल वाटर फिल्टर बनाया है। धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धा। अब आगे बढ़ते हुए मैं पहले चाहूँगी कि ऋतुराज मोहंता, जो कि सुकिंदा से हैं, अपने ईएमसी के बारे में बताएं। तो यहाँ बैठे सबको मेरा प्रणाम। मैं ऋतुराज मोहंतो, क्लास 8। मैं ओडिशा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के सुकिंदा ब्लॉक से आया हूँ।
तो हमारा स्कूल ग्रीन स्कूल के साथ 2018 से है और इस साल हम ईएमसी में जड़ित हुए हैं। तो हम ईएमसी में जितने भी सारे मेंबर्स हैं उनको हमने एक मतलब नाम दिया है ग्रीन कप्स। तो इस ग्रीन कप्स में जो स्कीपर्स बैकअप हीरो जितने भी सब हम टीम मेंबर्स हैं, तो ग्रीन स्कूल के जैसे मतलब जो एक्टिविटीज है वो सब हम करते हैं। मतलब जैसे कि प्लांटेशन ड्राइव, जैसे कि मतलब हमें प्लांट्स दिया जाता है हम और स्कूल को साफ करके वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। और मतलब जो हमें जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं तो हम कलर पेपर जब यूज करते हैं और जो मतलब रह जाता है उसे हम फेंक देते हैं। तो उसे हमारी टीम के गर्ल्स ने मतलब ना फेंक कर उसे कैसे रीयूज करा जाए, उसे कैसे हैंड क्राफ्टिंग मतलब डेकोरेशन करा जाए, होम डेकोरेशन करा जाए, वो बनाया है। और हमें वर्कशॉप की तरह ही सिखाया गया था कि आप जो पेपर जो यूज करते हो उसे मतलब यूज करके आप फेंक दे सो उसे रिसाइकल कैसे आप करोगे। उससे हमने मतलब पेपर को भिगोकर ग्राइंडिंग करके एक न्यू पेपर बनाए हैं। इससे हम और मतलब और भी वर्कशॉप हुए हैं, जैसे कि मतलब हमारे उड़ीसा के ऑल गवर्नमेंट स्कूल में एमडीएम व मिड डे मील चलता है। तो मतलब उसमें जो खाना रह जाता है उसे जो फेंक देते हैं हम उसे ना फेंक कर एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसका कंपोस्ट बनाते हैं। और उसका कंपोस्ट बना के हमारे जो मतलब गार्डन है, स्कूल का गार्डन है, उस पे हम यूज करते हैं, जो कि एक मतलब प्राकृतिक खाद के जैसे वो यूज होता है और वो बहुत अच्छा भी होता है। और जैसे कि मतलब मैं जहाँ से आया वहाँ पे एक लार्जेस्ट कोमाइन माइन है टाटा स्टील का। तो मतलब वहाँ के बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि आप जानते हैं माइन जहाँ होता है वहाँ का बायोडाइवर्सिटी खराब तो होगा ही। तो उस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन और टेरी ने हमारे वहाँ बहुत सारे मतलब प्रोग्राम किए हैं, जैसे कि लव स्पैरो, जैव कला विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं। और उसमें हमें सिखाया जाता है कि आप कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हो, कैसे आप रीयूज करोगे, मतलब आपके जो परिवेश है उसको कैसे आप ग्रीन रख पाओगे। जैसे कि आप देखोगा मतलब पहले जैसा ये ग्रीन नहीं है अब। तो इसी ग्रीन को बचाने के लिए मेरी टीम ग्रीन कप्स इस काम में लगी है। तो मेरी टीम अकेले तो ये नहीं कर पाएगी, मतलब सबका अगर इसमें योगदान होगा, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से बनता सागर, अगर आप सबका हेल्प मेरे साथ होगा तो काश मैं फिर से इस धरती को ग्रीन बना सकता हूँ। सो थैंक यू। थैंक यू ऋतुराज, बहुत सही कहा कि सबके साथ के साथ हम बहुत बदलाव ला सकते हैं। और आप तीनों ने जो हमारे साथ एग्जाम्पल शेयर करे हैं वो बहुत सराहनीय हैं। छोटे छोटे हैं बट अगर सभी स्कूल्स थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे तो जो आपकी होप है वो ज़रूर पूरी होगी। इसके साथ इस पैनल के जो एक्सपीरियंस स्कूल के बच्चों की जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं और उन्होंने इसमें बताया कि कैसे उन्होंने कुछ अर्ली स्कूल्स को ज्वाइन किया है। तो अर्ली स्कूल्स के साथ क्या है इसको जानेंगे हम नेक्स्ट पैनल में। पर अब चलते हैं वापस अमर के पास और जानते हैं नेक्स्ट पैनल के लिए। Thank you so much, Neha ma'am, and the entire panelists for sharing the sustainable actions they have been undertaking since a while. Now we will proceed towards our second panel discussion on partnering for greener tomorrow. This session will be moderated by Ms. Khushbu Prajapati, Manager Education, Tata Steel Foundation. Ma'am, handing over the mic to you. थैंक यू वेरी मच अमर। सबको को गुड इवनिंग। हमने अभी थोड़ी देर पहले हम सब ने ये सुना कि बच्चे मिल करके उन्होंने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने मिल करके बहुत सारे काम किए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और काम किया कि वो इस नॉलेज को उन्होंने अपने अंदर नहीं रखा, इस नॉलेज को, इन लर्निंग्स को वो दूसरे स्कूल की तरफ भी उन्होंने बढ़ाया है। तो इस सेशन में हम लोग ये नई स्कूल के साथ, अर्ली स्कूल जिनको हम कहते हैं, इनके साथ इन्होंने काम कैसे किया, क्या काम किया, इसके बारे में हम जानेंगे। इस सेशन में हमारे साथ हैं कुसुपंगा स्कूल से सुश्री स्मिता और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हैं गणेश बेहरा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुश्री से और गणेश से कि वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सुश्री स्मिता है एक्सपीरियंस स्कूल से और गणेश है अर्ली स्कूल से। सबको मेरा प्रणाम।
मेरा नाम सुश्री स्मिता नाथ, मैं टाटा स्टील उड़ीसा मेरा मंडली से आया हूँ। ग्रीन स्कूल 3 वर्ष से चलता है। ग्रीन स्कूल के साथ विद्यालय जुड़े हैं। ग्रीन स्कूल एमसी गठन स्थापित हो। एमसी का सफाई का किया जाता है। ग्रीन स्कूल खलीबेरना एक प्रतियोगिता करता है। नाटक और वृक्षारोपण लगते और 10 डस्टबिन लगते हैं। टुकड़ा कागज और अब चौकाहो अब कागज बनाया। थैली और कागज ठोंगा बनाया। ब्लू डस्टबिन की वे ड्राई वेस्ट, ग्रीन डस्टबिन की वेट वेस्ट, येलो डस्टबिन की हजारडोस वेस्ट, रेड डस्टबिन की रिजेक्ट बाय डेंजर वेस्ट कहा जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सुश्री। तुमने बहुत ही अच्छे से प्यारे से तुमने बताया कि आपकी ईएमसी ने क्या क्या किया। मैं एक बात के ऊपर फोकस करना चाहूँगी कि इनके स्कूल के जैसे और भी 6 स्कूल वहाँ पर हैं। सारे स्कूल मिल करके वो कम्युनिटी में गए। कम्युनिटी नियर बाई जो गांव है उस गांव में जा करके उन्होंने बहुत बड़ा अभियान किया, अवेयरनेस किया ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इन्होंने नुक्कड़ नाटक करके वहाँ लोगों को और यूथ को पूरी तरह से अवेयर किया और यूथ के द्वारा वहाँ की विलेज कमिटी के द्वारा उन्होंने डस्टबिन्स एस्टैब्लिश किए, डस्टबिन्स डाले अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरियाज में उस गांव में। ये एक बहुत बड़ा काम इन छोटे छोटे बच्चों ने किया है मिल करके। अब हम जाएंगे गणेश के तरफ। वो बताएंगे कि एज अर्ली स्कूल जब उनके पास ये सुश्री की टीम आई, सुश्री स्मिता की टीम आई, तो उन्होंने क्या क्या बताया, उनको वो क्या क्या सीख पाए हैं, तो हम सुनते हैं गणेश से। सबको मेरा प्रणाम। मैं टाटा स्टील मेरा मंडली से आया हूँ। मैं ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। वो जो ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट है वहाँ में 7 स्कूल जुड़े हुए हैं। वो 7 स्कूल में एक परिवेश परिचालना कमेटी गठन किए हैं। वो परिवेश परिचालना कमेटी में स्टूडेंट, टीचर्स और गांव के लोग भी हैं। हम वो परिवेश परिचालना कमेटी को लेके ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट हर काम करते हैं। वो परिवेश परिचालना कमेटी को लेके हम खलीबेरना गांव में एक कार्यक्रम किए थे। वो गांव में हम 10 डस्टबिन स्थापना किए थे। यहाँ नुक्कड़ नाटक किए थे। वो खलीबेरना गांव में हम जाकर लोगों को सचेतन किए थे। हमारा टीम वृक्षारोपण करते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि वृक्षारोपण करो, वृक्ष हमको ऑक्सीजन देता है। अगर वृक्षारोपण हम नहीं करेंगे, वृक्ष को काटेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये सारी बातें भी हम लोगों को बताते हैं। हम जल संरक्षण करते हैं, जैसे वर्षा जल को गट्टे गुल कर यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं और शौचालय में जो टैप है उसको आवश्यकता समय ऑन करते हैं और बाकी समय ऑफ कर देते हैं। ये भी हम लोगों को बताते हैं। और हम जो प्लास्टिक निकलता है इसको हम इधर उधर ना फेंक कर डस्टबिन में डालते हैं। ये भी बातें हम लोगों को बताते हैं। हमारा किचन में जो सब्जी का छिलका निकलता है इसको हम उधर इधर ना फेंक कर 3 मटकी में रखकर 15-15 दिन रिसाइकलिंग करके कंपोस्ट बनाते हैं और इसको पेड़ पौधे में डालते हैं, जैसे वो पेड़ पौधा हमको अच्छा फसल दे। ये भी हम लोगों को बताते हैं। हमारा विद्यालय यानी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सरपा रघुनाथपुर इस साल ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं। ये हम भी 6 स्कूल की तरह हम भी परिवेश संबंधित काम कर रहे हैं और हमारा काम भी आगे जारी रहेगा। हमको सहयोग मिलने से हम भी कुछ कर दिखाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू गणेश। इन बच्चों का जोश
मेरे जोश से काफ़ी अधिक है और इनकी बातों को सुन करके मन नहीं भर रहा और सुनते रहने का मन कर रहा है। तो हम इसी सेशन में हमारे साथ दो और स्कूल जुड़े हैं जो कि ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे साथ। लॉयला स्कूल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी उदयराज पाल एंड रोशन कुमार प्रजापति जो कि ग्रीन स्किपर्स हैं लॉयला स्कूल कलिंगा नगर से, वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन करें। ओके, कैन वी, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने इस बच्चों के जोश में मैं ही एक बच्चे को भूल गई कि वो भी अपना प्रेजेंटेशन के साथ रेडी है। किशन पात्रा जो कि SSVM मेरा मंडली से आए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं इस फोरम में। मैं उनको माइक देती हूँ। सॉरी किशन, मेरी गलती है। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम किशन पत्रा, मैं उड़ीसा मेरा मंडली से आया हूँ। हमारे साथ 7 स्कूल के बच्चे मिलके हमारे साथ काम करते हैं और हर स्कूल में EMC गठन किए कराए जाते हैं और तथा वो लोगों को वृक्षारोपण कैसे करते हैं लोगों को सिखा रहे हैं और जल संरक्षण विद्युत संरक्षण कैसे करते हैं लोगों को सिखा रहे हैं। एक बूंद जल हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। हमारे जगत में जल नहीं है तो जगत श्मशान घाट बन जाएगा। वृक्ष हमको ऑक्सीजन देता है, अगर हम पेड़ को काट दे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। खली बना में एक नाटक हुआ था जिसमें हम सब 7 स्कूल के बच्चे मिलकर रैली किए थे और लोगों को सचेतन किए थे कि कैसे वृक्षारोपण जल संरक्षण करें। और खलीबना गांव में 10 डस्टबिन स्थापना की गई थी। किचन से जो निकलता हुआ सब्जी का छिलका को इधर उधर ना फेंक कर 3 मटके के द्वारा 15-15 दिन रखकर कंपोस्ट तैयार करके उसको पेड़ में डालेंगे तो वो हमको अच्छा फल देगा और अच्छा फसल भी होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू किशन। चलते हैं आगे। लॉयला स्कूल, आप अनम्यूट करें, अपना वीडियो ऑन करें। उदय एंड रोशन और उनके साथ है उन्होंने जिस स्कूल का हाथ थामा है, जैसा कि ये सेशन बोलती है, सेशन का नाम है पार्टनरिंग, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे जो स्कूल के साथ उन्होंने पार्टनर किया है वो स्कूल है तारिणी ओलिया स्कूल। So, good afternoon everyone. I am Uday Rajpal, Green Skipper. सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि लोयोला स्कूल ग्रीन स्कूल के साथ लगभग 4 सालों से कनेक्टेड है एंड दिस जर्नी हैज़ ट्रूली बीन नॉलेजेबल एंड प्रोग्रेसिव। कोविड के टाइम पे हमने कितने ट्रेन एनवायरमेंटलिस्ट के साथ कनेक्ट हुए एंड वी डिड मेनी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन। As an experienced school, we have our own EMC, Environmental Management Committee, to conduct sessions and initiatives within and outside our school. Good afternoon everyone. I am Roshan Kumar Prajapati, Green Skipper. Students में environmental awareness बढ़ाने के लिए हमने अपने स्कूल में Environment Week बनाया जिसमें EMC, Environmental Management Committee के members का बहुत important रोल था। हमने पूरे हफ्ते बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए जैसे कि पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, सेमिनार ऑन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जिसमें हमारी टाइनी टॉट्स ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। फिर हमने प्लांटेशन ड्राइव किया जिसमें बहुत सारे पौधे लगाए। टू एनहांस आवर स्किल वी कंडक्टेड अ सेशन विद अ अर्ली स्कूल दैट इज तारिणी नोडल स्कूल। There, with our friends, we discussed about the waste management on that session. Good evening, everyone. Good evening, everyone. My name is Lovely Rani Pradhan, Green Body. हमारे स्कूल पे लॉयला स्कूल के EMC के मेंबर ने विजिट करी थी। उसने हमको वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताई थी। वेस्ट मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरत है, वो करने से हमारा क्या उपयोग होगा और ये करने के लिए
ये क्यों हमारे परिवेश के लिए ज़रूरी है। ये बातें हमको वो बच्चे ने बताई थी। हम क्यों वेस्ट के बारे में जानेंगे। वेस्ट हमारे परिवेश बहुत अस्वच्छ है, उसको हम स्वच्छ करना चाहिए। इसलिए हमको वेस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको 3 टाइप के डस्टबिन यूज़ करना है। ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, हैज़ार्डस वेस्ट। ड्राई वेस्ट पे हम सूखे कूड़े कचरे डालते हैं, यानी कि पेपर को हम ड्राई वेस्ट पे डालते हैं। इसकी कलर ब्लू है। और हम वेट वेस्ट को ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं। जो गीले कूड़े कचरे हैं उसको हम ग्रीन डस्टबिन पे डालते हैं, यानी कि जो केले के छिलके हैं हम उसको ग्रीन डस्टबिन पे डालते हैं। और जो रेड डस्टबिन है यानी कि हैज़ार्डस डस्टबिन, इस पे हम डेंजरियस कूड़े कचरे लेकर डालते हैं, यानी कि हॉस्पिटल से जो निकलती है सीरिंज, इंजेक्शन, ये सब डेंजरियस कूड़े कचरे लेकर हम रेड डस्टबिन पे डालते हैं। इसलिए ये डस्टबिन हमको यूज़ करना है, क्योंकि हमारे परिवेश पे कूड़े कचरे यहाँ उधर फैला हुआ है। हम उसको साफ करना चाहिए, हमारे परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे स्कूल के बच्चों ने प्लास्टिक की बोतल यूज़ करते हैं। हम उनको बताना चाहिए प्लास्टिक हमारे लिए बहुत डेंजरस है। प्लास्टिक यूज़ करने से हमारे परिवेश अस्वच्छ होता है, क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी पे नहीं मिलती है। इसीलिए हम प्लास्टिक की बोतल यूज़ करना गलत बात है। हम प्लास्टिक के अलावा हमारे जो घर पे वाटर बोतल है उसको लेकर स्कूल आना चाहिए। और कभी-कभी जब हम प्लास्टिक की वाटर बोतल यूज़ करते हैं, उस प्लास्टिक की बोतल यहाँ वहाँ फैलाएंगे नहीं। उससे हम क्राफ्ट बना सकते हैं, यानी कि पेन स्टैंड हो या पेंसिल स्टैंड हो। वो स्टैंड पे हम पेन पेंसिल को रख सकते हैं। इसलिए हमको प्लास्टिक को यहाँ उधर फेंकना नहीं चाहिए। हमारे स्कूल पे लॉयला स्कूल के स्टूडेंट ने हमारे स्कूल से हर दिन कितनी कूड़े कचरे यानी कि पेपर निकलती है वो ऑडिट करी थी। हमारे स्कूल के बच्चों ने कितनी कूड़े कचरे यहाँ उधर फैलाते हैं उसके बारे में भी उसने हमको जानकारी दी थी। हमने एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिव्यू EIR पे लिया स्टूडेंट्स से, ताकि स्टूडेंट्स को इन डेप्थ वेस्ट रिलेटेड नॉलेज, उसके इम्पैक्ट्स, मेजर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स एंड ये एनालाइज करना कि आखिर इस प्रोजेक्ट को हम आगे कैसे ले सकते हैं। EIR से हमें ये पता चला कि तारिणी नोडल स्कूल में किचन गार्डन की कमी थी। प्लांटेशन तो था पर स्टूडेंट्स कहीं भी कूड़ा फेंक रहे थे, तो हमें लगा कि शायद उन्हें डस्टबिन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इवन सारे क्लासेस में डस्टबिन भी नहीं थे। हमने उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्टबिन के बारे में बताया, बट क्योंकि उनके पास नहीं था तो वो एक ही डस्टबिन यूज करें। हम सोच रहे हैं हम फ्यूचर में यानी कि 2-3 महीने के बाद हमारे स्कूल पे डस्टबिन 3 टाइप के डस्ट कि हम हमारे स्कूल के बच्चों को ये पता नहीं है कि डस्टबिन यूज़ करना चाहिए। वो सब डस्टबिन यूज़ नहीं करते हैं, वो कूड़े कचरों को यहाँ उधर फैलाते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि 3 टाइप के डस्टबिन हमारे स्कूल पे हम यूज़ करेंगे। बच्चों ने ये तो सीख पाएंगे कि किस तरीके से हम डस्टबिन यूज़ करेंगे, कौन सी वाली कूड़े कचरे को लेकर कौन सी वाली डस्टबिन पे पकाएंगे। इसीलिए हम चाहेंगे हम डस्टबिन यूज़ करेंगे और प्लास्टिक की बोतल यूज़ नहीं करेंगे, और प्लास्टिक से बहुत अच्छे स्टैंड्स बनाएंगे, पेन स्टैंड बनाएंगे। तब हमारे जो परिवेश है वो स्वच्छ रह सकता है, अस्वच्छ न रहो। तो अब हमारा ये एम रहेगा कि हम तारिणी नोडल स्कूल के साथ कोलैबोरेट करके फ्यूचर में और इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे। Thank you to the complete Green School team. Thank you very much, उदय, रोशन एंड लवली। बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि अर्ली स्कूल के साथ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट रिव्यू किया जा रहा है, और उसमें जो
गैप्स निकल के आ रहे हैं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के, उन गैप्स को एड्रेस करने के लिए आप लोग सारा तैयारी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यह भी बहुत अच्छा लगा जान करके कि ऑलरेडी आपने इतना सारा काम कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। एक राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन फॉर ऑल दीज चिल्ड्रन। थैंक यू। विद दिस आई विल हैंड ओवर बैक टू अमर। Thank you so much, ma'am, and all the panelists for sharing their experience of working on environmental issues under the guidance of Experience Schools. Moving ahead towards our next session, mainstreaming green education. Focusing on the need of the present time and relevance of environment education for children of all ages, this session will focus on innovative ideas to enhance learning in environmental sustainability. I would like to invite Ms. Smita Agarwal, Head of Education, Tata Steel Foundation, to share her valuable views on the same. Smita ma'am, handing over the mic to you. Sure. So सबको जोहार, जोहार बोलिए सब लोग जोर से। दिल्ली में पता चलना चाहिए जोहार क्या होता है। आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हो, हाँ ओके। तो आप आ रहे हैं जब उड़ीसा और झारखंड से, तो उड़ीसा और झारखंड की कुछ खुशबू यहाँ पे आनी चाहिए ना। तो आप लोगों ने इतना अच्छा बताया, तो और ये काफ़ी साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है ना। आप लोग जो पहले कर रहे थे शुरू के 1-2 साल पहले, और अब में आपकी भी नॉलेज बढ़ी है ना, आप ज़्यादा सीखे हो ना, हाँ ज़्यादा सीखें, और अब ज़्यादा काम करने के कर रहे हैं आप, ज़्यादा आइडियाज़ भी आ रहे हैं, हाँ। और आप लोग अपने कम्युनिटी को, अपने घर में अपने माँ बाप को, आपके पड़ोसी नेबर्स सबको भी बता रहे हैं ना। तो आपको लग रहा है कि आपके काम से उनमें भी ज़्यादा समझ आ रही है, उनमें भी समझ बढ़ रही है ना। तो यही है कि हर साल, अभी कई लोगों ने बोला भी कि आगे का हमारा क्या प्लान है, लॉयला के बच्चों ने भी बोला कि आगे का क्या प्लान है। तो अब 4 साल हो गए हैं, आपके 5वां साल स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब आपको 5 गुना ज़्यादा काम करना है, राइट? सही है ना? तो आप यही सोच के आप ज़्यादा काम करने के लिए आपको ज़्यादा सीखना भी पड़ेगा, हाँ। एनवायरनमेंट के बारे में आपको अपनी समझ भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? तो और सीखोगे आप लोग ना, और पढ़ना पड़ेगा और लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। यहाँ पे सर जैसे लोग हैं, आपको सर भी बताएंगे। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी आप जैसा कि नेहा मैम ने बोला, आप और अच्छे स्किपर्स बन पाओगे, ठीक है? तो आप कैन यू जस्ट पुट ऑन द फर्स्ट स्लाइड। इसके पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताती हूँ। हमारा प्रोग्राम जो है, एक तो टाटा स्टील के जो प्रॉक्सिमेट एरियाज़ हैं, जो हमारी आउट लोकेशंस हैं, यूनिट्स हैं, वहाँ पे 34 स्कूल्स हैं, 34 स्कूल्स हैं, उनमें चल रहा है। और उनके थ्रू आसपास की सारी कम्युनिटीज़ में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो वहाँ के बच्चे तो यहाँ पे मौजूद हैं। और लेकिन इससे भी बड़ा हमारा जो एजुकेशन का प्रोग्राम है, उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन सिग्नेचर प्रोग्राम। वो प्रोग्राम और अभी तो फैल के 6000 से ज़्यादा, 6500 स्कूलों तक पहुंच चुका है, झारखंड और उड़ीसा के। और वहाँ पे भी ये प्रोग्राम चल रहा है। और लॉकडाउन के पीरियड में हमने वहाँ पे भी बच्चों के साथ काम शुरू किया था। तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चे, मतलब 1,30,000-35 हज़ार बच्चों ने इस प्रोग्राम में जुड़ के काम किया। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कूल्स जो हैं और ये जो दूसरे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो सब भी किस तरह से आपस में मिल के या किस तरह से शेयरिंग कर सकें, जिससे कि आप लोगों की हुई जो भी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ शेयर किया, और वो लोग जो बच्चे कर रहे हैं, वो सब मिल के एक ही प्रोग्राम बने। अभी थोड़ा सा अलग अलग स्ट्रीम्स में चल रहा है, पर पिछले 4 साल में हम लोगों ने सीखा बहुत है। और बच्चों ने जो सेंसिटिविटी दिखाई है एनवायरनमेंट के प्रति, वो बड़े लोग उतना नहीं दिखा पाते हैं। आप लोग बहुत नेचुरली
आपको अच्छा लगता है, पेड़ पौधे जानवर इवन कीड़े मकोड़े, बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं इन चीज़ों को, बड़े लोग थोड़ा सा उनको वो अपने काम में लगे रहते हैं। और पर एनवायरनमेंट के प्रति मैंने नहीं देखा कि बड़े लोग इतनी सेंसिटिविटी दिखाएं जितना बच्चे लोग दिखाते हैं। और आप लोगों ने खाली यही नहीं करा है कि आपके आसपास में क्या है, आपने आगे बढ़ के कई एरियाज़ में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। आपके 4 एरियाज़ कौन कौन से हैं बता सकते हैं? किन 4 एरियाज़ में आप लोग काम कर रहे हैं? वेस्ट, वाटर, बच्चों को बोलने दीजिए, बायोडाइवर्सिटी एंड एनर्जी, एग्जैक्टली 4 एरियाज़ में आप लोग काम कर रहे हैं। ये एरियाज़ तो हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो और भी चीज़ों पे सीखेंगे। और आप लोगों ने तो खैर एक्शन कितना लिया है वो तो आपने बताया ऑलरेडी। और इसके अलावा आपने ऑलरेडी ये भी बताया कि कम्युनिटीज़ में आपने किस तरीके से अपने मैसेज को लेकर के गए, जिससे कि गांव में भी सब लोग इसके बारे में जानें। तो मैं भी कुछ आपसे सब लोगों से उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारा एजुकेशन सिग्नेचर प्रोग्राम है, नेक्स्ट स्लाइड इफ़ यू कैन शेयर, कैन यू पुट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, या। तो 3 चीज़ें मैं आपको 3 अप्रोचेस में बताऊंगी, अब थोड़ा सा बताऊंगी उसके बारे में कि जो गांव में जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, उन बच्चों को हमने कहा कि पहले तो आप ऑब्ज़र्व करिए जाके अपने आसपास, जंगल बहुत हैं और वैसे भी पेड़ पौधे तो बहुत हैं ही, पर इन ट्राइबल एरियाज़ में जंगल सारे गांव के आसपास, थोड़े भी दूर जाइए तो जंगल मिल जाता है और कई तो गांव ही जंगल के बीच में होते हैं। तो हमने बच्चों से कहा कि अलग अलग कि 1 वीक आप सिर्फ अलग अलग तरह के पेड़ और पौधे ऑब्ज़र्व करिए, उनके तरह तरह की पत्तियां इकट्ठे करके लाइए, उनको ऑब्ज़र्व करिए, उनकी शेप, उनका साइज़, वो किस तरह से उगते हैं पेड़ के ऊपर, जिससे कि उनकी थोड़ी सेंसिटिविटी बने। पेड़ पौधे तो हम सब देखते हैं लेकिन गहराई से नहीं देखते हैं, तो अगर हम गहराई से देखें पेड़ के तने में क्या क्या होता है, पेड़ की छाल कैसी होती है, उसके सीड्स कैसे होते हैं, जब इन सब अलग अलग चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे बच्चे तो पत्तियाँ उसकी किस तरह से जुड़ी होती हैं पेड़ की शाखा के ऊपर, फिर उसका तने पे किस तरह के मार्क्स होते हैं, अलग अलग पेड़ों के कैसे तने होते हैं और उनकी रूट्स किस तरह की होती हैं, कुछ की एक्सपोज्ड होती हैं, कुछ की पेड़ के नीचे होती हैं, कुछ की हैंगिंग भी होती हैं रूट्स। तो इन सब चीज़ों को, उसके बाद इंसेक्ट्स को, कितने तरह के कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, तो उसके पहले हमने छोटी सी एक चीज़, अच्छा उसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो उन्होंने 1 वीक अलग अलग चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, वो गए, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उसके ड्राइंग्स बनाए, उसके बारे में लिखा, डिस्क्रिप्शंस लिखा, कैसे होते हैं, कितने बड़े होते हैं, क्या होता है। तो ये देखिए बच्चों ने काम जो करके लाए, बच्चे इस तरह की चीज़ें बच्चों ने बनाई हैं, कुछ उनके बच्चों की बनाई हुई पिक्चर्स हैं। और इंटरनेट से भी उन्होंने उन बर्ड्स और उन इंसेक्ट्स के बारे में जाना जो उनके आसपास में नहीं होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है, दूसरे पार्ट ऑफ डेजर्ट में किस तरह के होते हैं, या फिर दूसरे देशों में किस तरह के बर्ड्स होते हैं, ऑस्ट्रिच कहाँ पे पाया जाता है, कौन से वो बर्ड्स हैं या कौन से वो इंसेक्ट्स हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, जिनके नंबर्स बहुत कम रह गए हैं, तो जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ऐसी बर्ड्स के बारे में भी उन्होंने पढ़ा जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जैसे कि डोडो बर्ड जो है, शायद आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, तो 300 साल पहले ख़त्म हो गई है वो बर्ड। तो उसके बारे में भी बच्चों ने पढ़ा और ये भी जानने की कोशिश की कि जब एक बर्ड एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है। अकेले एक बर्ड एक्सटिंक्ट नहीं होती, उसके साथ कुछ एक कौन सा वाला पेड़ होता है, मैं नाम भूल गई उसका, हाँ, वो दोनों साथ साथ होते हैं। तो जब ये बर्ड और वो ट्री दोनों एक साथ एक्सटिंक्ट हुए, उसके साथ साथ और बहुत सारी छोटी छोटी जो उस पर डिपेंड करती हैं वो भी चीज़ एक्सटिंक्ट हुई। तो कई फिर ये भी उन्होंने सीखा कि कैसे साइंटिस्ट ने जाना कि वो बर्ड दिखती कैसी थी। 300 साल पहले का तो किसी ने बर्ड को देखा नहीं था, तो उसकी बोन्स, उसका स्केलेटन, कैसे साइंटिस्ट ने उसको रिक्रिएट करा उस बर्ड को कि वो कैसी दिखती होगी वो चिड़िया, उसके शेप, शक्ल, सूरत, उसके कलर्स किस तरह के होंगे। इन सब चीज़ों में बच्चों ने जब पढ़ा तो उनको बहुत मज़ा आया। और एक चीज़ और बच्चों ने करी, हमने उनसे कहा कि जो आप बनाते होंगे ना, ये क्या बोलते हैं उसको, एनिमल किंगडम चार्ट बनाते हैं ना, मैमल्स, फिश, इंसेक्ट्स, ये सब बनाते हैं ना, एम्फीबियंस,
रेप्टाइल्स, है ना। तो उसमें जो किताबों में चार्ट्स आता है उसमें बहुत तरह तरह के जानवर होते हैं जो हमने कभी देखे हुए भी नहीं होते हैं। उसमें जिराफ भी दिखाएंगे, वेल मछली भी दिखाएंगे, हमने तो देखा भी नहीं है उसको। तो यहाँ बच्चों ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, तो अपने इलाके के जीव जंतुओं से एनिमल किंगडम का चार्ट बनाया। उन्होंने अपने पॉन्ड में जाके देखा कि कौन से एम्फीबियंस हैं, क्या कौन सी मछली हैं, तो और उससे उन्होंने जब चार्ट बनाया और फिर तो उनको बड़ा मज़ा आया। उनको लगा कि हम एक फ्रेमवर्क में अपने आसपास के सारे जीव जंतुओं को डाल रहे हैं, हम अलग तरीके से उनको देख रहे हैं जैसे और फिर उन्होंने जब जो दूसरे चार्ट्स होते हैं जो इंटरनेट या बुक्स में होते हैं उससे कंपेयर किया, तो उन्हें ज़्यादा कंपेयर कर पाए वो कि हमारे आसपास कौन से जीव जंतु हैं और अगर आप बड़े एरिया में देखोगे तो कौन से जीव जंतु और कितने तरह तरह के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हमने एक 3-4 हफ्ते की सीरीज़ बायोडाइवर्सिटी पे की। इसमें हमने क्या किया कि पहले हमने बच्चों से सिर्फ ये पूछा कि आप उन सारे जानवरों के नाम बताइए जो आपके गांव में होते हैं। तो बच्चों ने लिखना शुरू करा, गाय भैंस जो भी कुछ उनको दिखता है, कुत्ता, ये सब छोटे बड़े सब तरह के, तो उन्होंने सबके नाम लिखे। तो मुश्किल से वो 40 से ज़्यादा नाम नहीं आए, 40 जितने दिखते हैं। तो कितने जानवर आपके आसपास में रहते हैं, कितने जीव जंतु, तो उन्होंने करीब 40 की लिस्ट बनी। फिर हमने उनसे कहा कि आप एक पैच लीजिए ग्रुप में, एक ग्रुप एक कुछ 6-8 फुट बाय 6-8 फुट का एक हरा रंग का ग्राउंड में एक पैच आप मार्क कर लो, निशान लगा दो उसकी चारों कोनों पे, और उसको आप जाके क्लोजली ऑब्जर्व करो। आप रोज़ सुबह आधा घंटा जाके उसको गहराई से ऑब्जर्व करिए और शाम को आधा घंटा। अब वो दिख तो रहा है खाली हरा हरा सा घास है, कुछ उसमें कुछ छोटे मोटे पौधे हैं, तो क्या देखें इसमें। पर जब देखना शुरू करा तो उसमें बहुत तरह तरह के छोटे छोटे कीड़े, कैसे कैसे चलने वाले, उसमें उड़ने वाले कीड़े, फिर उसमें कोई बर्ड आके बैठ जाती है, फिर कोई जानवर भी उसमें आता है। तो ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो और कितने तरह के उसमें घास हैं, छोटी छोटी पत्तियों वाले, उनके रूट्स कैसे हैं, वो कैसे फैल रही हैं चारों तरफ। तो उन्होंने जब फ्लोरा और फौना, फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है, एनिमल्स। तो जब उन्होंने फ्लोरा और फौना को उस 6 फुट बाय 6 फुट के या जो भी था उसमें पैच में ऑब्जर्व किया, तो उनको लगा कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। और एक वीक तक जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उनके बीच के रिलेशंस भी देखने शुरू करे कि ये अच्छा, और ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह की फीसेस होती हैं, क्या खाती है कोई चीज़, कोई इंसेक्ट क्या खाता है, कोई पत्ते में छेद कर रहा है, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की। फिर हमने एक और वीक उनसे कहा कि जो कोई बड़ा पेड़ चुनो, खूब बड़ा पेड़ कोई चुनो, उसको ऑब्जर्व करो आप, उस पर क्या हो रहा है, उसमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके रूट्स में क्या हो रहा है, उसके तने पे क्या हो रहा है, उस पर ब्रांचेस में क्या हो रहा है, उस पर कौन सी बर्ड्स आके बैठती हैं, कौन से कीड़े हैं, क्या है। तो उन्होंने बच्चों ने उस पेड़ को 1-2 हफ्ते तक ऑब्जर्व किया, उसके बारे में ड्राइंग्स बनाई, नोट्स लिखे, और फिर उनको एक अलग तरह की चीज़ दिखनी शुरू हुई, क्योंकि उसमें ऊपर से बर्ड्स भी काफ़ी आती हैं पेड़ के ऊपर। तो वो देखा, उनको बड़ा मज़ा आया, उसमें भी बहुत कुछ उनको। फिर तीसरी चीज़ हमने कहा कि आप एक अगर गांव में एक छोटा सा तालाब या पुकुर है तो उसको देखो, उसके पानी के अंदर जो दिखता है वो देखो, उसके किनारे पे जो पॉन्ड के किनारे पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो है उसको। हमने बायोडाइवर्सिटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने कहा किस किस तरह की चीज़ें हैं। ये 3-4 चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद बच्चों को पता चला कि 40 नहीं, उन्होंने कम से कम 400 तरह की चीज़ें देख ली थी। तो बायोडाइवर्सिटी का उनको एक समझ बना कि हमको कुछ चीज़ें दिखती हैं, बड़े बड़े जानवर तो आ जाते हैं हमारे सामने, लेकिन छोटे छोटे जानवर जो वाकई में इस पृथ्वी को चला रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनके बारे में तो हम जानते ही नहीं हैं, और उनके नाम भी नहीं पता होते, उनकी शक्ल सूरत भी नहीं पता होती, और बहुत सारे तो आज तक बायोलॉजी में बायोलॉजिस्ट ने डॉक्यूमेंट तक नहीं करे, और उनमें से बहुत सारे ख़त्म भी हो चुके हैं, उनके प्रजातियां भी पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि बायोडाइवर्सिटी में कितने सारे ये करने से बच्चों को बायोडाइवर्सिटी की एक समझ बनी और उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, और उनके बहुत सारी एक्टिविटीज़, उनके बिहेवियर्स, कौन सी बर्ड कब आती है, कितनी देर बैठती है, कैसी आवाज़ करती है, सुबह क्या होता है, दोपहर को क्या होता है, शाम को क्या होता है। अगर हम और करें तो सीज़न
अलग अलग सीजन्स में क्या होता है वो भी हम देख सकते हैं। अगर आपके स्कूल में कोई पेड़ है तो आप देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4 महीनों में क्या हो रहा है उस पेड़ के साथ में या उस एरिया में, तो ये और लंबा भी चल सकता है। पर इससे उनको एक चीज़ जो बच्चों को लगना शुरू हुआ ये कि अगर हमने कहा कि अगर मान लीजिए ये टाइप के कीड़े पूरे गायब हो जाएं या मकड़ी सारी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, तो उनको पहली बार ये चीज़ लगने लगी, वेब ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, कि ये सबकी एक एक रोल है और इनमें से एक प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी तो बाकी प्रजातियों पे क्या असर पड़ेगा, फ्लोरा और फौना। तो थोड़ा उसमें घुसने शुरू हुए बच्चे कि इन सब की कितनी इम्पोर्टेंस है। और उनके अपने सोच विचार में भी, जैसे कुछ बच्चों ने हमको टीचर्स ने बताया कि वो अपने माँ बाप से भी किन चीज़ों में बहसबाजी कर लेते थे कि इसे क्यों आप मार रहे हो, इस पर आप ध्यान से क्यों नहीं करते हो, आप इसको पैर कैसे पड़ गया आपका, इस पर अच्छे से करो। तो उनको ये चीज़ समझ में आनी शुरू हुई कि हर एक जीव और जंतु का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और रोल क्या है वो खुद जीव जंतु बहुत इम्पोर्टेंट है वेब ऑफ लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट। और तीसरी चीज़ ये है कि जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम बात करते हैं तो आपको दिख रहा है भारत का नक्शा बीच में, और इसमें आपको कुछ कलर दिख रहे हैं स्टेट्स अलग अलग जगह के। तो ये कुछ न्यूज़ स्टोरीज़ हमने इकट्ठी करी जो अलग अलग वेबसाइट्स या न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में छपती हैं, और उनको बच्चों को दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक स्टोरी थी अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों से कि जैसे कच्छ गुजरात जहाँ डेजर्ट है वहाँ पे ये आपको पता होगा कि पशुपालन करते हैं, वहाँ खेती नहीं होती है, तो थाउजेंड्स ऑफ शीप लोग रखते हैं और उनको फिर चराने के लिए लेके जाते हैं। एक सीज़न में उनको चराने के लिए लेके जाते हैं। तो पहले निकलते थे जब मानसून होती थी तो 3-4 महीनों तक उनको घुमाते रहते थे। ऊँट के भी ऐसे जाते हैं, आप लोगों ने अगर देखा हो तो, और 3-4 महीने में वो अच्छा से खा पी के लौट के आ जाते थे, घास वास खूब मिल जाती थी। अब क्या है, वहाँ इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, सड़कें ब्रॉड बन रही हैं, बहुत बड़े बड़े हाईवेज़ बन रहे हैं, ये सब हो रहा है, धुआं बहुत हो रहा है, तो अब वो ग्रासलैंड ख़त्म हो जा रहे हैं। तब उनको दूर जाना पड़ता है, 7-8 महीने लगते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते और 10-11, अब तो कई लोग तो साल भर भी चराते रहते हैं तो भी उनका पूरा नहीं होता। तो उनकी लाइफ इतनी मुश्किल हो गई है, जानवरों को लेके घूमते रहते हैं, दूसरे स्टेट्स में भी उनको जाना पड़ता है। तो पैस्ट्रल जो कम्युनिटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बिना प्लानिंग के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। फिर ये तो आपने देखा ही होगा कि ह्यूमन और वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो ये महाराष्ट्र की स्टोरी थी कि बहुत बड़े वाले जो बफलोज होते हैं, वो देख सकते हैं, वो उनके लिए एक सेंचुरी बनाई, और इतने गैर जिम्मेदार हमारे लोग हैं कि उस सेंचुरी में माइनिंग करनी शुरू कर दी। अब माइनिंग करनी शुरू कर दी तो वहाँ पानी ख़त्म, उनका खाना ख़त्म, फिर वो बाहर निकलने लगे, फिर वो खेतों में घुसने लगे, फिर खेत के जो किसान हैं वो उनको मारने के लिए तरीके ढूंढने लगे, वो पटाखे लगा के ये सब करके, तो ये सब शुरू हुआ। तो बच्चों ने, उड़ीसा के बच्चे थे, उन्होंने भी याद करके कहा कि हमारे यहाँ भी हाथी आता है। तो अपने एरिया से वो रिलेट उसको करने लगे कि हमारे यहाँ भी हाथी जंगल में और गांव में घुस जाता है, हमारे घर भी तोड़ देता है हाथी आकर के। फिर केमिकल एग्रीकल्चर, वो तो पता ही है आपको, उसके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तीसरा एक था कि समुद्र, आपको पता है समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र वार्म हो रहे हैं। अब तमिलनाडु के कोस्ट पे एक पेशा है औरतों का कि वो डाइव करती हैं समुद्र में और सीवीड निकालती हैं। समुद्र के नीचे पैदा होने वाले जो कुछ प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, सीवीड्स कहलाते हैं, उसको वो नीचे, और बहुत मुश्किल काम है उनका, वो दिन में कितनी बार उनको डाइव करके नीचे जाना पड़ता है, वो सीवीड्स निकाल के लाती हैं। फिर आसपास के उस एरिया में बहुत सारी मेडिसिन की फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें वो सीवीड्स बिकती हैं जा करके। अब समुद्र का टेम्परेचर वार्म हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सीवीड्स कम पैदा हो रही हैं, अब उनको मिल नहीं रही उतनी, तो दवाइयाँ भी बननी कम हो रही हैं। और इन औरतों का भी, वो आप फ़ोटो देख रहे हो, बच्चों ने जो बनाई है, वो औरतें बैठ के उसको इकट्ठा कर रही हैं सीवीड्स पानी में। ये समुद्र के वार्म होने से हमारे अपने देश में तमिलनाडु की औरतों के ऊपर कितना, उनके परिवार पे कितना असर हो रहा है। और आखिरी आप देखेंगे ऊपर की ये जो लद्दाख की एक स्टोरी है जो बच्चों ने पढ़ी, जिसमें वहाँ पे टेम्परेचर उठ रहा है, तो जानवर, ये जो याक है, ये -40 डिग्रीज़ में तो खुश रहता है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर -15 डिग्री तक आ गए।
अब वो बेचारे याक बहुत परेशान, और बहुत पॉपुलेशन उनकी ड्रॉप हो गई, और उनसे रिलेटेड पूरी इकॉनमी है वहाँ की, तो वो पूरी इकॉनमी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई, और कितने हंड्रेड्स ऑफ याक्स की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। तो अब ये सब मैं डिटेल में नहीं बोलूँगी, आप चाहें तो आपको हम भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, आप भी इनको कर सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जब बच्चों ने अलग अलग इंडिया के पार्ट्स के बारे में जाना और उस नक्शे के अकॉर्डिंग, तो फिर हमने उनके साथ SDG शेयर किया एनवायरनमेंट वाला, फिर वो रिलेट कर पाए उसके साथ में। फिर उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग की कहानी भी पढ़ी, उन्होंने ये भी पढ़ा कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, जैसे कहते हैं कि बहुत, आपको पता होगा आग बहुत लगी थी जंगलों में, पूरे कैलिफोर्निया से लेके कहाँ कहाँ साइबेरिया तक में फॉरेस्ट फायर्स जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, उसके बारे में भी बच्चे जान पाए। और ये जो अर्थक्वेक्स और ये सब जो चीज़ें इतनी ज़्यादा आ रही हैं, तो बेसिकली वी कैन गो टू द लास्ट स्लाइड एंड आई टेक अनदर 2 मिनट्स। तो ये सिर्फ इतना है कि इसमें ज़्यादा मुझे कुछ कहने के लिए नहीं है। यही है कि बच्चों ने जो, जैसे आप लोगों ने कितने सारे एक्शन लिया ना, आप लोगों ने अपने गांव के लिए, वहाँ पे भी बच्चों ने बहुत सारा एक्शन लिया। जैसे कि एक गांव में हमारे बिना कुछ बोले खुद बच्चों ने, छोटे से गांव में लगता भी नहीं कि इतना होगा, लेकिन सारी प्लास्टिक इकट्ठी करी और देखा कि बहुत बड़े बड़े उनके वो बन गए, और वो लेकर के सरपंच के पास गए कि देखिए गाँव में कितनी प्लास्टिक इकट्ठी हो रही है। और दुकानदार जो छोटी छोटी 2-3 शॉप्स थी उनको भी दिखाया कि आप क्यों प्लास्टिक रखते हो, या इस तरीके से उन्होंने भी एक लोकल जो हाट होते हैं ना गांव में, वहाँ उन्होंने कहा बहुत कचरा फैला हुआ है, तो उन्होंने भी आपके जैसे डस्टबिन वहाँ बनाए। वो लोग भी सरपंच के पास गए और कहा कि आप एक सैंक्शन करो बड़ा डस्टबिन यहाँ लगाने के लिए। और वाटर कंजर्वेशन पे बच्चों ने रैलीज़ की। मतलब ये सब चीज़ें तो हमको बोलना भी नहीं पड़ता है, जब एक बार उनको लगना शुरू होता है सारे बच्चों को, तो उनको लगता है कि हम इसको रोकने के लिए भी कुछ करें। तो मुझे इतना ही कहना है, और थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, और वापस से फिर से जोहार। Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable views. With this, we will move towards our last session, Dialogue on Greener Tomorrow. This session is designed for an open house discussion between young environmentalists and global leaders to understand present global environment situation and the role of present generation in making greener future. The experts include Mr. A.K. Bhatnagar, General Manager, OMQ Division, Tata Steel; Mr. Manish Mishra, Chief Corporate Affairs, Tata Steel; Mr. Amitava Bhattacharjee, Distinguished Fellow, TERI; and Dr. Kavita Sharma, Professor, NCERT. So today we have young leaders with us who are taking sustainable actions as Green Skipper and Green Buddy, and as their inquisitive minds are full of questions, so let's start the dialogue. Maybe we can start the dialogue with Subodh. Subodh, you can ask your question. Good evening, everyone. My name is Subodh Kumar from शिशु निकेतन हाई स्कूल वेस्ट बोकारो। मेरा प्रश्न है, क्या आप जलवायु परिवर्तन के लिए वर्तमान में किए जा रहे कार्यों में क्या समझते हैं, इससे हमारा फ्यूचर कितना सुरक्षित है? I would request Manish sir if you can take this question. Thank you, and thank you first of all for the opportunity to be here. And before I come to the specific question, first of all, felt very happy. I joined about half an hour back, and I was listening to the presentation जो बच्चे कर रहे थे, और उसके बाद डिस्कशन जो हो रहा था, तो बहुत खुशी हो रही है देख के कि ग्रीन स्कूल जो 6-7 साल पुराना इनिशिएटिव है टाटा स्टील और टेरी का, इट हैज रीच टू दिस लेवल। एंड खुशबू सर, मैं चेक कर रहा था कि जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस समय 10 schools were covered. Now that number has gone 4 times. And the outreach to students in terms of direct, which was about 3,000, has also gone 4 times, more than 13,000 students. And so is the case with teachers and others. So
My compliments, and I'm very happy that the purpose with which this was started in terms of creating awareness is fully there, and children are very well informed. Coming to the question which has been asked, जो आपने पूछा कि जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो सफिशिएंट हैं या नहीं हैं, तो ये क्वेश्चन सबके पास है। ये यही क्वेश्चन आप जो सोच रहे हैं ये हर देश की सरकार सोचती है, जितने इंडस्ट्री के लोग हैं सोचते हैं, और ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये एक ग्लोबल इशू इस तरह का है क्लाइमेट चेंज का, जो किसी एक संस्था या एक देश या एक स्टेक होल्डर के एक्शन लेने या नहीं लेने से नहीं होगा। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स हम लोग बोलते हैं, जितने कंस्टिट्यूएंट्स हैं सबका भागीदारी होना जरूरी है। इसीलिए पहला महत्वपूर्ण कदम जो आप मान सकते हैं रिसेंट हिस्ट्री में, विच एवरीवन टॉक्स अबाउट, इज द पेरिस अकॉर्ड। 2015 में ये काफी जद्दोजहद के बाद बहुत सभी देश ये तय किए कि हम लोग उस समय इसको बोला जाता था INDC, इंटेंडेड नेशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स, कितना आप रिडक्शन करेंगे। When then subsequent, so that was one stage, one major step where most of the countries agreed, saying that we are taking this pledge and we will do that, and the formulation. And year after that, though there has been some hiccups here and there, but directionally 2015 के बाद इस सब्जेक्ट पे काफी सहमति है और काफी एक्शन हो रहा है और काफी मेन स्ट्रीम है, क्योंकि आज हम लोग जब स्कूल के स्तर पे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं और इसका चर्चा हो रहा है, इसका मतलब है कि दिस इज नाउ इन द कोर ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू. So to that extent, I will say it is a positive thing and our outlook will be positive. Nonetheless, as जनसंख्या बढ़ रही है, लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ेगा और उस डायरेक्शन में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं, उसमें और बहुत कुछ करना है. जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं और जो स्टॉक टेकिंग होता है एमिशन का, उसमें ये निकल के आता है कि जितनी भी हमारी प्लेजेस हैं, एक्शंस हैं, वो काफ़ी नहीं होगा. इसलिए आप देखेंगे कि जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस है. अभी आप थोड़े विस्तार में आपको लोग बताएंगे. नेशनल कार्बन मार्केट होता है जिसमें जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको बढ़ाने और घटाने के लिए इंसेंटिव करने का स्कीम. तो सरकारें स्टेप्स ले रही हैं, इंडस्ट्री स्टेप्स ले रही है, लेकिन शॉर्ट आंसर ये है कि बहुत कुछ इसमें करना है, बट दिशा हमारी सही है, ये मैं बच्चों को कहना चाहूँगा. Thank you so much, sir, for your valuable views. Now I would request Aman. और कोई panelist कोई कहना चाहे, बहुत Okay. important point है कोई panelist. If any of the panelists want to comment on the same question. Yeah. So, I think we'll move towards our next question. So, Aman, you can ask your question. Good morning, sir. My name is Aman Kumar from B.R. Ambedkar School, वेस्ट बोकारो. मेरा प्रश्न यह है कि भविष्य में हमारी कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार पर्यावरण को और बेहतर ढंग से कैसे प्रस्तुत करें जिससे जो ग्रीन स्कूल का हिस्सा नहीं है वो भी अपना योगदान दे सके. So I think Kavita ma'am, you would be the best person to address this. So how are you thinking about incorporation of environment education in the formal curriculum in a better way for those who are not associated with green school? I think मुझे लगता है this question is not from the child's point of view. It is more for the adults to understand. We as teachers and the other stakeholders in the system,
So I was carefully listening to, all the kind of presentations that were going on. I was very glad to hear, very amazed to hear the kind of strategies children had been telling that they had adopted those measures, and where they use different techniques of preserving and conserving the natural resources, biodiversity, plantation, and even reducing, reuse, and all those kind of things that they were doing, including segregation of waste and all that. And so all these activities they are doing, and you had involved children from 6 to 8, as I can understand from this program. See, environmental education is, of course, a very, very crucial component, not just as per the international agenda of sustainable development, but हमारी अपना constitution, हमारी policy, अभी भी जो national education policy, and even before that, they had been highlighting this as a major concern, और टेरी का तो बहुत बड़ा role है इस सारी चीज़ में। और NCERT को हम स्कूल एजुकेशन पर अगर एपेक्स बॉडी की तरह देखते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं और जो जिस भाषा में बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सभी को उसमें समझ में आएगी कि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है, ये बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है कि हम एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज वी अडॉप्ट द काइंड ऑफ इन्फ्यूज्ड अप्रोच. What is this infused approach? That means it is not a concern of one subject of science or social science, but it is a concern of all subjects, all teachers, all stakeholders. So accordingly, इसके जो concerns और concepts हैं, वो सारे subjects में infuse किए जाते हैं, because it is not a subject, if you take it as this way that कि अभी मैं बहुत सारे लोगों को सुन रही थी, किसी ने ये भी बोला कि adults को ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल होता है, बच्चों को सेंसिटाइज आसानी से किया जा सकता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं, बच्चे इन चीज़ों में लेते हैं, लेकिन एडल्ट बिहेवियर बड़ा मुश्किल होता है करना. सो इन अ वे वी सी दैट ये जो अप्रोच है, इट इज़ नॉट टू बी टेकन एज अ सब्जेक्ट जिसको कि पढ़ लिया, रट लिया, एग्जाम दे दिया और हम पास हो गए. So, एग्जाम दे के एक सर्टिफिकेट ले लिया. It is more of a kind of approach. It is a way of life. It is not to be preached, but it is to be practiced. This is a kind of thing, I think, if we are talking about this environmental education. तो हम education for sustainable development है जिसको अभी हम कह रहे हैं, because अभी क्योंकि खराब करने वाला environment को तो human है ना. So no animal will ask 4 बाल्टी पानी एक्स्ट्रा दे दो, या 2 कार दे दो, या 2 घर दे दो. So that is why we have, taken this approach, the anthropocentric approach. We have shifted towards education for sustainable development. लेकिन हम अगर इसको प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करना है, तो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स का इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है. तो हमने करिकुलम को ऐसे ही देखा है. प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है पेडागॉजी में, प्रॉब्लम है उसकी ट्रांजैक्शन में. अभी मैं सुन रही थी मैडम अग्रवाल जो प्रेजेंट कर रही थी अपनी, कि उन्होंने इस अप्रोच से बच्चों को पढ़ाया तो उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया. सो व्हाट इज दैट अप्रोच? It's a sort of holistic approach, an integrated approach where she has broken the boundaries of subjects, and it is a kind of made them porous. जहाँ मैथ्स का टीचर ये नहीं कह रहा, जहाँ वो बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स की काउंटिंग कर रही है तो वो नहीं है. बॉटनी का टीचर ये नहीं कह रहा कि मैं जो है सिर्फ प्लांट की बात करूंगा. जूलॉजी में नहीं कहा जा रहा कि मैं सिर्फ इस चीज की बात करूंगी. तो ये वो जो एक होलिस्टिक अप्रोच को लेके जहाँ सब्जेक्ट बाउंड्रीज पोरस कर दी जाती हैं, वो हमारी facility के लिए, just to make these the content of different areas understandable and comprehensible, वो हमने create की होती हैं, but उसको हम इतना rigid बना देते हैं so that the integration from different subjects never gets done. So how we transact these subjects, how we transact those textbooks, that is a huge concern. So we are working in this direction. बहुत सारे टीचर है, जैसे अभी उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, अगर वो पढ़ा सकते हैं तो सब पढ़ा सकते हैं वैसे, isn't it? So it's only to build the capacity of the teachers in that direction. We are working with the B.Ed colleges and the teacher education colleges. Problem textbook में नहीं, problem transaction में है. तो अगर बच्चों को उस अप्रोच से करवाया जाता है, where they learn in their context, where it is hands on, where it is more experiential, तो वो अपने आप से इन चीज़ों की ओर सेंसिटाइज होते हैं. और सेंसिटाइजेशन
एक फर्स्ट लेवल है, यू गेट सेंसिटाइज एंड देन यू गेट अवेयर, बट प्रॉब्लम वहां से लेके देन द काइंड ऑफ स्किल्स दैट यू इनहेरिट, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इसके लिए एक अलग से पीरियड रख दिया जाए और इसको अलग से चीजें कर दी जाए. इवन योर मॉर्निंग असेंबली इज अ टाइम वेयर यू कैन यूज दिस टाइम टू ट्रांजैक्ट दीज पर्टिकुलर एक्टिविटीज. क्या बच्चों ने जो नुक्कड़ नाटक किया उसमें लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं होती? क्या वो जो कर रहे हैं उससे एक्सप्रेशन, उससे आर्ट एंड एक्सप्रेशन की चीजें डेवलप नहीं होती? So it's a kind of thing how you are looking at these things. There were art and craft activities, there were creative activities, theater activities, learning activities. All these lead to the overall development of children in a way that is which is physical, cognitive and in all directions. तो अगर हम इस तरह से चीजों को देखें कि हम उनको बच्चों तक लेके कैसे जा रहे हैं, नॉट टू स्केयर चिल्ड्रन, कि बच्चों को डराना नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज आ गई है जिससे वी ऑल्सो हैव द काइंड ऑफ, हम तो 6 से नहीं अर्ली स्कूल से बोलते हैं, क्लास एट द एज ऑफ 3 हाउ डू वी ट्रांजैक्ट. Children should not be restricted to their classroom, sitting on the benches in front of children where they are being taught in a manner जो कि बिल्कुल textbook और chalk based approach. So please take them to the field, allow them to interact with the environment, allow them to use their experiences, to enrich their knowledge further. And that's how, by slowly and steadily, when you give this kind of approach, when children live in that environment where the adults are the role models for them, not just they are just preaching to them in a way, it is not something to be taught, but it is something to be practiced also. तो दूसरा इसकी चीज है कि हम असेसमेंट कैसे करते हैं. फिर हम ए ग्रेड बी ग्रेड में बांट के सर्टिफिकेट नहीं दें, बट एट द सेम टाइम द टीचर्स इन द स्कूल नीड टू बी विद देम, ऑब्जर्व विद देम एंड आल्सो डू दैट काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिपोर्टिंग. तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने कितना इसको एड्रेस किया क्वेश्चन को, कितना नहीं, बट आई होप इफ समथिंग सम सेंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दैट. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू वेरी मच. Nikita, you can ask your question. Firstly, a very warm good evening to all of you present over here. I am Nikita Kumari, the green skipper of DAV Public School, Alkusha. तो मेरा सवाल ये है कि हम हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को पर्यावरण संरक्षण के ओर कैसे जागरूक करें कि वे इस प्रॉब्लम की गहराई को समझ सकें. Amitava sir, it would be great if you can address this question. Okay. Yes. मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ. एक काउंटर क्वेश्चन, काउंटर मतलब एक सवाल, दूसरा सवाल. एक सवाल का जवाब तो सवाल नहीं होता, पर एक सवाल का इसमें आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ. Yes, sir. जैसे मान लीजिए आपने घर में रहते हैं अपने परिवार के साथ, तो उधर मान लीजिए आपका कोई पसंद नहीं है, कोई दूसरे मेंबर है फैमिली का कर नहीं रहा है, कपड़ा ठीक तरह से नहीं रख रहा है, कुछ पुस्तकें नहीं रख रहा है, तो आप उनको कैसे कम्युनिकेट करें ये नहीं है आप जो गंदा कर रहे हो, जब मैं देखो इतना नीट एंड क्लीन करके सभी समेट रहा हूँ, आप तो इसको मैं आके सारे आप बिगाड़ रहे हो, तो कैसे आप कम्युनिकेट करोगे. मान लीजिए आप बच्चा, आप भैया हो बा कोई और भी, इवन पेरेंट्स भी हो, मान पेरेंट्स भी हो सकते कभी कभी, बूढ़े लोग भी और भी ज़्यादा, मतलब उनका शिक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है वैसे आजकल. हाँ तो सर, टेकिंग दिस एग्जाम्पल, मैं अपने भाई को कंसिडर करना चाहूँगी. लाइक ही इज़ रियली स्मॉल फ्रॉम मी, सो ऐसा बहुत बार होता है, लाइक आई एम समवन हु लाइक्स टू कीप एवरीथिंग क्लीन, एंड उसका आदत है कि वो बिगाड़ देता है. ऐसे देख के पता चला, इसलिए मैंने भी एग्जाम्पल लिया आपको देख के पता चला जी अब बड़े नीट एंड क्लीन किस्म की स्वभाव है आपकी. तो ऐसे क्या बोलेंगे बच्चे को, अजय भाई आपका भैया छोटा है, चलो भैया छोटा नहीं तो आपके थोड़ा सा बड़ा भैया इमेजिन कर लीजिए, भैया थोड़ा बड़ा है, मान लीजिए आपकी उम्र का है, पर वो सुन ही नहीं रहा है, वो तो जाके बास्केटबॉल ये खेलेगा, क्रिकेट विकेट करके आके सारे इधर कपड़े इधर, पुस्तकें इधर, शूज़ इधर, बैग इधर, और आपको रोज वही काम करना पड़ता है. हाँ तो सर, इफ़ वी टेक इट इन अ वे कि लाइक मैं अपना काम करती हूँ, एंड लाइक फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने भाई को समझाने की कोशिश की दैट तुम समझो लाइक क्या क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस है. लाइक मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए होंगे जिससे, बट स्टिल उसने ध्यान नहीं दिया. तो इन अ वे ऑफ रियलाइजेशन कि अगर कोई इंसान आपका कोई बात ना समझे तो आप उसे किसी और तरीके से वो बात रियलाइज करवाएं. जैसे कि मान लीजिए अब वो इन द एग्जाम्पल, मान लीजिए वो मेरे से बड़ा है, ठीक है, तो एक वे ऑफ रियलाइजेशन होता है, ठीक है. तो अब अगले दिन से मैंने उसको बोलना छोड़ दिया
एक दो दिन उसने नोटिस किया कि लाइक मैंने बहुत टाइम तक उसको बोला, फिर मैंने उसे नहीं बोला। फिर कुछ दिनों बाद मैंने ही वो काम उसका करना शुरू कर दिया। तो फिर उसे कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज़ होगा कि वो मेरे से छोटी है, वो मेरी बहन है। पहले उसने मुझे अवेयर करने का ट्राई किया, जब मैं अवेयर नहीं हुआ तो उसने कुछ टाइम मुझे एक गैप दिया, एंड स्टिल जब मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसने मेरे तरफ से एक्शन लिया। तो इन अ वे कि अगर कोई और काम ना करे तो आप पहले खुद काम करिए एंड देन उसे रियलाइज शेविंग, इसको कहते हैं शेविंग। ये जो हम ओडीए, हम स्वच्छता मिशन में मैं हेड था काफी Yes, sir. तो उसमें ये हम इसको कहते हैं शेमिंग, नेमिंग शेमिंग। जैसे किसी को कुछ गुनहगार है तो उसको पर्यावरण संपर्क कहते हैं, उसको नेम करो, शेम करो। और मान लीजिए नेमिंग में भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, शेमिंग में भी, और आजकल तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, चलो सो व्हाट, ठीक है, तो उसके भी फर्क नहीं पड़ा तो क्या करोगे आप? देन we'll try again. दो चाटा मारोगे, झप्पड़ मारोगे उसको। यानी कि पर्यावरण में भी ऑल्सो सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। पहले देखो, पर्यावरण एक का काम तो हो नहीं सकता। इनफैक्ट एवरीवन इज सेइंग, एंटायर वर्ल्ड इज सेइंग, या स्मॉल हॉल में आप कह रहे हैं, बाकी सारे दुनिया कह रहे हैं, एक व्यक्ति का, पर सबका योगदान है इसके अंदर, छोटे छोटे जितना भी हो। तो अब उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते जो दे थिंक ये somebody else's प्रॉब्लम, ये मेरा नहीं है, ये मैं तो मेरा छोटा सा, मैं प्लास्टिक का कचरा फेंक दूँ, ये फेंक दूँ, वो फेंक दूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं छोटा, मेरा कंट्रीब्यूशन बिगाड़ने वाला छोटा। बट अगर सभी लोग ऐसे सोचने लगे, जैसे भाई ने एक बार बोला था, बिंदु में सिंधु, सागर में गागर, एक किसी ने बोला था, सागर में बूंद बूंद पानी से सागर बनती है। तो इसलिए अगर कुछ शाम दाम दंड भेद, हमारे शास्त्र में कहते हैं शाम दाम दंड भेद, 4 प्रकार की से लोगों से काम कराया जाता है। सोसाइटी 4 प्रकार से काम करती है। शाम में नहीं होता तो दाम, नहीं तो है दंड, नहीं तो भेद, मारो उसको, दंड मारो, करना तो पड़ेगा। बिकॉज बेटे अब टिपिंग पॉइंट ओवर हो चुका है। अभी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अभी काम नहीं बनेगा, अभी तो 2-2.5 की बात चल रही है, तो काफ़ी सारे दुनिया में बहुत नुकसान होने वाला है। तो इसलिए कुछ चीज़ समझाने में और कलेक्टिव एक्शन में होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए कुछ चीज़ को हमको, सरकार को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वैसे कलेक्टिव ऑल ओवर द वर्ल्ड हो ही भी रहा है, बट मेन तो शुरुआत तो होना चाहिए कलेक्टिव एक्शन और बहुत सारे तरीके, जैसे आपने कहा। और कोई प्रश्न? सर, एक और सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है कि जैसे कि मैं अपने स्कूल से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी ईएमसी की रिपोर्ट कहती है कि हमने नुक्कड़ नाटक किए हैं 8 जगह में। हमने इसी साल पिछले साल दिसंबर से शुरू किया था, एंड हमने नुक्कड़ नाटक 8 जगह किया है। बट जहाँ तक हमने रिस्पांस देखा है, कहीं पे 50% बहुत लोग आ रहे हैं, कहीं पे बहुत कम लोग आ रहे हैं। कुछ का रिस्पांस बहुत अच्छा है, जैसे कि मान लीजिए अगर वो हमारे सामने ही प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन हो रहा है, एंड उसके बाद वो प्लास्टिक नहीं यूज़ कर रहे हैं। बट बहुत लोग ऐसे हैं कि हाँ, जस्ट फॉर एन इंटरटेनमेंट पर्पस वो आ रहे हैं, देख रहे हैं, एंड देन वापस वही सब कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम उन पे एक और थोड़ा और गहरा इम्पैक्ट किस टाइप से डाल सकें कि वो हमारे मैटर्स को सीरियसली लें। देखो, ये 2 टाइप की तरीका होता है। पहले सभी बहुत जगह में है, इसको एक होता है कि आपको जो प्रेजेंटेशन जो है, मान लीजिए नुक्कड़ नाटक जो है, इसको कैसे और रोचक बनाया जाए। बस कभी कभी ऐसे होता है, ये नुक्कड़ नाटक लोगों को मालूम भी है, तो उसके बाद तो बच्चे लोग ऐसे वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज वो है, तो इसमें कोई लोगों का इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, बट नहीं होता है। तो ये ऐसे हर वक्त जो आप जो करोगे, नुक्कड़ नाटक करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे, और डिफरेंट जो तरीके होते हैं, उसको और कैसे, इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी का आवश्यकता है, कैसे रोचक बनाया जाए। लोगों के पास टाइम कम है, जैसे कि मैं शाम को जाके बैठूंगा आधे घंटे जो भी है, तो मैं तो बोर हो जाऊंगा। तो उसको बोरियत सी ना लगे, इसलिए आपको एक तो रोचक करें। दूसरा एक तरीका ऐसे होता है, काफ़ी सारे संस्था करते हैं, उसको कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर। छोटे छोटे लेवल भी होता है ब्रांड एम्बेसडर, मतलब जैसे आपके उधर कोई हॉकी प्लेयर है, मान लीजिए कुछ भारत में उसी क्षेत्र में काफ़ी हॉकी प्लेयर आते हैं, काफ़ी उसी उड़ीसा ये ट्राइबल बेल्ट पे, तो ऐसे कोई लोगों के पास जाए
उनको रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज़ उसको एक दिन हमारे कार्यक्रम होगा, आप प्लीज़ आके बहुत खुश होके, बिकॉज ये भी यंग लीडर्स है सोसाइटी का। तो मान लीजिए वो लोग आपका नुक्कड़ नाटक नहीं आएंगे, कोई विक्रम लाकरा के लिए आएंगे। विक्रम नाम भूल गया मैंने, विक्रम लाकरा है, वो गोलकीपर है इंडियन टीम की, स्कीपर अगर आए, अरे विक्रम भाई आ रहा है, विक्रम भाई, सब वो पूरा गांव 4-5 गांव खाली हो जाएगा लाकड़ा को देखने के लिए। उसी दरमियान आप उसको आपकी जो मैसेज है उसको दिए, लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको ग्रहण भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Yes. So due to time constraints, we'll take one last question. So if any student have any question, yes, Saman. मेरा प्रश्न ये है कि उद्यम हमारे भविष्य को बचाने के लिए क्या क्या कर रही है, क्या आप इस पे थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? I think Atul sir would be the best fit to address this question. Sir, if you can throw some light on how industries are acting to conserve the environment. ये सबको जोहार। और जो प्रश्न है ये सिर्फ इंडस्ट्री नहीं सबके लिए है, बट मैं अपने उत्तर को इंडस्ट्री तक ही सीमित रखना चाहूँगा। आज के समय में जितना आप बच्चों को इस पर्यावरण की चिंता है, उतनी ही हम सबको है, और हम सबका प्रयास यही रहता है कि जो हम जिसे आपने कुछ पुराने सेशन में पढ़ा होगा या सुना होगा, इंटरजनरेशनल इक्विटी। आज जो पर्यावरण हमारे पूर्वजों के पास था, जो जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी आप कहते हैं, वो आगे भी हमें कंटिन्यू रखना है, उसे मेंटेन करना है, ताकि आप उस चीज को एक्सपीरियंस करें। और जैसा स्मिता मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि हम अपने आसपास के एरिया में जाके हमने छोटे-छोटे चीजों को देखा, कैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, कैसे छोटे-छोटे जीवाणु हैं और वो किस तरह के, और आपने फोटोग्राफ्स खींची यहाँ पे। तो इस विविधता को बनाए रखना पूरे पर्यावरण और पृथ्वी के संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो एक तो है कि बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं जिनका पालन करना होता है, पर कोई भी जिम्मेवार इंडस्ट्री सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहती है, वो उसके आगे भी काम करती है, क्योंकि पर्यावरण हम सब के लिए ज़रूरी है। और जैसे अगर आप बोलें कि आज के समय में लोगों का ध्यान है कि किस तरह हम वाटर कंजर्वेशन करें, बारिश का पानी जो है इसको कैसे हम हार्वेस्ट करें, ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल या भूजल स्तर है वो ऊपर उठे, और इस पानी को जैसे जो बारिश से आया है उसको हम अपने पृथ्वी के क्षेत्र में संचित कर सकें, ताकि ये आगे यूज हो सके। तो ये एक एफर्ट है। टाटा ग्रुप एज सच अगर आप बोलिए तो हमारे चेयरमैन ने ये प्रण लिया है कि टाटा ग्रुप 2045 तक नेट जीरो टारगेट पे आएगा, और इस मतलब ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसको पूरा करने के लिए हमारे टाटा ग्रुप की हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंपनी इसमें संलग्न है और प्रयासरत है, और एक रोड मैप बनता है कि किस तरह कार्बन एमिशंस हम कम करें, पानी का संरक्षण करें, अपने इंडस्ट्री में पानी अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम उसको कैसे कम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करें। एयर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप अगर देखें, लोगों का नॉर्मली एक धारणा रहती है कि अगर माइनिंग है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगा, बट आज आप डेटा अगर देखिए तो हो सकता है कि दिल्ली और बम्बई का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो माइनिंग एरिया से भी खराब होगा। तो ये चलता रहता है, बट हमेशा उद्यम का प्रयास यही है कि किस तरह से जिस पर्यावरण से आज हम खनिज का दोहन कर रहे हैं, उस पर्यावरण को हम मेंटेन करके रखें, अच्छा करें। और साथ ही साथ एक और जिम्मेदारी होती है, जैसे अगर हम माइनिंग के क्षेत्र में हैं, तो जब माइनिंग का कार्य खत्म होगा तो हमें उस क्षेत्र को वापस उसी स्टेट में लाने की का कमिटमेंट होता है, ताकि कि आगे अगर जैसे वो है तो वापस वो फिर हरा-भरा, या अगर जिस तरह की वहाँ पे प्रजाति बायोडायवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए पूरी इंडस्ट्री कार्यरत है, कमिटेड है, और जैसा मैंने बताया टाटा ग्रुप का टारगेट है कि 2045 तक नेट ज़ीरो एमिशंस के लिए हम प्रण लिए चुके हैं। थैंक यू।
Thank you so much, sir. It was an interesting dialogue. I hope everyone got their answers, and thank you all the experts for sharing your views from the valuable experience you have. With this, our session comes to an end, and now we will move towards the concluding remarks. I would now invite Dr. Neha, Senior Fellow Terry, and Shubh Srivastav, Green Skipper from St. Mary School, Normandy. I would now hand over the session to Shubh. सो हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार और जुहार। मैं शुभ श्रीवास्तव सेंट मेरी स्कूल नॉर्मंडी से आया हूँ। आज के इस सेशन में हमने जाना कि कैसे ग्रीन स्कूल एक टाटा स्टील फाउंडेशन इनिशिएटिव ने ना ही सिर्फ एक एजुकेशनल इकोसिस्टम को बदला है, बल्कि आसपास में रहने वाली कम्युनिटीज़ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। इस सेशन में हमने ये भी जाना कि कैसे ग्रीन स्कूल हमें हमारी इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग्स को हम और मॉडर्न बनाने में हेल्प कर रहा है। हम सब तरीके की एसओपीज, जैसे कि हम सब तरीके की एसओपीज के साथ इक्विप्ड है, जो कि हमारी मदद करती हैं बाकी अर्ली स्कूल्स को भी एक एक्सपीरियंस ग्रीन स्कूल बनाने में। हम एज अ एक्सपीरियंस ग्रीन स्कूल आने वाले फ्यूचर को और सस्टेनेबल और ग्रीन बनाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू शुभ, बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कि आज के सेशन में हमने क्या क्या किया है। मैं ये मौका लेना चाहूँगी कि मैं सबको बताऊं कि जब 2017 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो हमारा ये था कि हम सब में जागरूकता पैदा करें इस 4 मुद्दों को लेकर, जो हैं वेस्ट, एनर्जी, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी और वाटर। तो हमने जागरूकता करी। उसके नेक्स्ट फेज़ के अंदर हमने इनके बारे में बच्चों को नॉलेज, ना ही बच्चों को बल्कि टीचर्स को भी बहुत सारे नॉलेज थ्रू टीचिंग लर्निंग मॉड्यूल्स, बहुत सारे हमने इसके अंदर रिसोर्सेज डेवलप करे, गेम्स बनाए, बोर्ड गेम्स, डिजिटल गेम्स, जिनके साथ हमने नॉलेज को स्प्रेड किया। उसके बाद पेंडेमिक आ गया, जिस टाइम सभी बच्चे और टीचर्स ने मिलकर एक बहुत ही एक्सप्लिसिट लर्निंग करी। उन्होंने बहुत सारे काम करे, पेपर रिसाइकलिंग करा, नेस्ट मेकिंग, वाटर रीयूज़, वाटर हार्वेस्टिंग एट होम, रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल टू मेक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपने बहुत सारी चीज़ें करी, आपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, अपने कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया। वो फेज़ हमारा लंबा फेज़ था, बट एक ऐसा फेज़ था जब हम एक्टिव लर्निंग कर रहे थे, जो सीख रहे थे अपने बाकी पीयर्स के साथ, एल्डर्स के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। यहाँ तक कि मेरा मंडली के 6 स्कूल्स ने 36 पंचायत को इकट्ठे ले आए थे। ये दम था आपकी एक्टिव लर्निंग में। नेक्स्ट फेज़ के अंदर हमने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमने सीखा है उसके एक्शन में डालते हैं, और इन सबको लिंक किया क्लाइमेट चेंज और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। और हमने अपनी जो एक ऊर्जा होती है और अपने अंदर के विश्वास को जगाया, और हमारे ग्रीन स्कूल के बच्चे बने पीयर लीडर्स। उन्होंने ग्रीन बडीज़ बनकर एक दूसरे को सहयोग किया। अपना जो 6th, 7th, 8th के बच्चे थे, उन्होंने पूरे मैसेज को आगे बढ़ाना शुरू किया। और इस फेज़ में हम बिहेवियरल चेंज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये हमारे 26 स्कूलों ने 19 अर्ली स्कूल्स का हाथ मिलाकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी। इट्स सच ए प्राउड मोमेंट कि इन 26 स्कूल्स ने ना ही अपने स्कूल में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट रिव्यू करा है वाटर और वेस्ट पर, बल्कि 19 स्कूल्स में जाकर करा है। आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वहाँ पर अपशिष्ट यानी वेस्ट या पानी, दोनों में से किसको पहले एड्रेस करना है, और फिर उसके ऊपर उन मुद्दों पर उन बच्चों के आप एनहेंस करेंगे उनकी नॉलेज को और बढ़ाएंगे उनको बिहेवियर चेंज की तरफ। ये एक ऐसी मुहिम है जिसके साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद करते हैं जो ये सफ़र 10 स्कूल के साथ शुरू हुआ था, आज 26 एक्सपीरियंस्ड और 19 अर्ली स्कूल के साथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। So as we are moving towards the closing, so on the behalf of the entire institute, I would like to thank our honorable speaker, Saurabh sir, Atul sir, Manish sir, Amitava sir, Smita for joining us, sparing your time to be with us. इसके साथ मैं एक बड़ा थैंक्स देना चाहूँगी हमारे साथ जुड़े हुए ग्रीन स्किपर्स और ग्रीन बडीज़ का जो आए। थैंक यू खुशबू for this panel, interesting panel discussion on experienced and early schools. Thank you students जिन्होंने इतने interesting questions पूछे। I am sure हमारे last panelist ने आपके साथ इस dialogue को enjoy किया होगा। एक अलग तरीके का हमने सोचा था कि एक हम करेंगे कि डायलॉग करते हैं, हम बीच में नहीं आते, सीधा younger generation will ask the global leaders about the thing, and I'm sure
कि आप लोगों को, बच्चों को और आई एम श्योर लीडर्स को भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ इस बारे में जुड़ने के लिए. विद दिस बिग थैंक यू टू एवरीवन for becoming part of this event and gracing with your presence. Thank you so much. Thank you so much. Thanks everyone.